میں نہیں ہے کہ تحریری ہو، منسٹر صاحب نے تفصیل میں اس میں آپ کو بتا دیا، اگر کہیں پہ آپ کو جناب اسپیکر صاحب دیکھیں ایک مل ایسا رہے ہیں تو معاملہ بتا دیں۔ ہے جس سے بلوچستان کی ساری زندگی، بلوچستان کی متاع، بلوچستان کی خوشی اور خوشحالی، بلوچستان کی ترقی، تعلیم، صحت، روزگار، سب یہ جو ایک چھوٹی سی تحریک میں نے پیش کی ہے، توجہ دلاؤ، یہ اس ہاؤس کا کام ہی ویسے یہی ہے کہ بلوچستان میں حکومت بلوچستان جو ہے کسی دن یہ انیشیٹ کرتا ڈسکشن، پالیسی ڈیبیٹ اینڈ ڈسکشن کہ بلوچستان کے مالی آلات پر، کیونکہ جب تک ہمارے جیب میں دولت نہیں ہوگی، پیسہ نہیں ہوگا، ہم اپنے لوگوں کے لیے خوشحالی کیسے لا سکتے ہیں؟ ہماری بڑھتی ہوئی آبادی ہے، ہماری بڑھتی ہوئی بے روزگاری ہے، ہمارے ہاں تقریباً 20 لاکھ کے قریب بچے جو ہیں اسکولوں سے یہ سب کا تعلق اس ایک پوائنٹ سے ہے کہ بلوچستان کی دولت جو ہے، بلوچستان کا پیسہ ہے، وہ کہاں سے آ رہا ہے، کہاں خرچ ہو رہا ہے، اور بلوچستان کیوں ابھی تک نقصان میں ہے۔ واحد صوبہ ہے باقی صوبوں کی نسبت میں، ابھی میرے دوست نے ایک بات کی، سر میں آ رہا ہوں جناب والا اسپیکر صاحب، اگر اس میں جس طرح انہوں نے بات کی میں نے مداخلت نہیں کی، میرے دوست نے کہا کہ جی یہ معلومات غلط ہیں کہ جی بلوچستان کا خسارہ ہے، خود انہوں نے تسلیم کیا کہ یہ اچھا موضوع ہے۔ جناب والا یہ 4 دن پہلے کا اخبار ہے، ابھی میں لائبریری سے منگوا رہا ہوں، جس میں حکومت بلوچستان کی اپنی خبر آئی ہے ان کے محکمہ فائنانس کا، کہ بلوچستان کا جو خسارہ ہے وہ 101 ارب روپے سے تجاوز کر گیا ہے۔ اسی کو ہی بیس بنا کے میں نے یہ ڈسکشن یہاں اسمبلی میں لے آیا۔ ابھی میں ان کو سر چھوٹی سی یہ بات بتانا چاہتا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے جو بلوچستان کا ایک ویشس سائیکل ہے، ڈیپٹ کا، ری پیمنٹ کا، انٹرسٹ کا، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے، اور بلوچستان میں آج تک کوئی سنجیدہ کوشش نہیں ہوئی کہ وہ بلوچستان کی مالی حالات کو بہتر بنانے کے لیے کوئی سنجیدہ ڈسکشن کریں۔ اس میں سر دیکھیں 2019 اور 20 میں جو بلوچستان کا بجٹ تھا، اس میں جو خسارہ تھا، ضرور صاحب آپ خود اس کو بتا سکتے ہیں کہ وہ صرف 47 ارب روپے کا تھا۔ جب آپ نے 2020 اور 2021 کا بجٹ پیش کیا، بلوچستان کا جو ڈیفیسٹ ہے، بجٹ ڈیفیسٹ یا بجٹ کا خسارہ، وہ 62 ارب روپے کا ہوا، یعنی 62 ارب روپے نقصان کا ہم نے بجٹ جو ہے، خسارے کا بجٹ پیش کیا۔ ابھی یہ جو خبر آئی ہے، انہوں نے خود یہ تسلیم کیا۔ اب دیکھیں ان کی اپنی باتوں میں ہی میں اس کو بتا دوں کیسے ہو گیا۔ جب آپ نے پچھلا بجٹ 2020 اور 21 کا جو ڈاکومنٹڈ ہے، جب 62 ارب روپے کا خسارے کا تھا، اور آپ خود یہ تسلیم کرتے ہیں کہ جو بجٹ اسٹیمیٹس پچھلی دفعہ فیڈرل گورنمنٹ نے وہ 5 ٹریلینز کے رکھے تھے، پچھلی دفعہ فیڈرل گورنمنٹ نے 5 ٹریلین یعنی 5000 ارب کا اسٹیمیٹس رکھا تھا کہ ہمیں محصولات ہوں گی، جس سے بلوچستان کا شیئر 281 ارب روپے بنتا تھا۔ تو حالانکہ وفاقی حکومت کو اس کے اسٹیمیٹ کے مطابق پیسے نہیں ملے، لیکن کانسٹیٹیوشن میں جو ہم نے اس وقت کام کیا تھا، کانسٹیٹیوشن میں ایک ایسی گارنٹی رکھی کہ گو کہ فیڈرل گورنمنٹ اگر خسارے میں بھی ہو تو بلوچستان کو خسارے میں شامل نہیں کیا جائے گا، بلوچستان کا حصہ اس کو پورا دیا جائے گا۔ بلوچستان کو 281 ارب روپے ملے۔ اب کیا ہوا، جب فیڈرل گورنمنٹ نے اس بجٹ میں اپنے اسٹیمیٹس وہ 3.5 ٹریلین پہ لے آئے، یعنی 3500 ارب روپے پہ لے آئے۔ اب اس میں کیا ہوا کہ جب فیڈرل گورنمنٹ نے اپنے اسٹیمیٹس کم کر دیے، تو بلوچستان کو جب ریونیوز حاصل ہوں گے تو بلوچستان کو آٹومیٹکلی تقریباً جناب والا 30 ارب روپے کا خسارہ ہے، جو ظہور صاحب نے خود تسلیم کیا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، جب آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ بلوچستان کو گزشتہ سال کی نسبت 30 ارب روپے کا خسارہ ہے، تو مجھے بتائیں کہ حکومت بلوچستان نے کس فورم پر پروٹیسٹ کیا کہ جی بلوچستان کا شیئر کم ہونے جا رہا ہے، آپ اپنے اسٹیمیٹس پچھلے سال کی نسبت کم رکھی ہیں، ان کو آپ درست کریں۔ یہ بات جناب والا آپ نے جو ہے کسی جگہ پر پروٹیسٹ ایز اے پروونشل گورنمنٹ آپ کو اٹھانا چاہیے تھا، اس غریب صوبے کے لیے 30 ارب روپے بڑی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب یقیناً 30 ارب کا خسارہ، 62 ارب روپے کا آپ کا پچھلا خسارہ، یہ 101 ارب روپے ہو گئے آٹومیٹکلی، اس میں کوئی بھی بچے کو بھی دے دیں کہ 62 اور 30 ارب کو 32 ارب کو ملائیں تو یہ کتنے کا خسارہ بن گیا؟ آپ کا 101 ارب 110 ارب روپے کا خسارہ آئے گا۔ اب اس کا امپیکٹ کیا ہے جناب چیئرمین؟ دیکھیں بلوچستان آج 18ویں ترمیم کے بعد بلوچستان کو خسارے میں نہیں ہونا چاہیے تھا۔ آج بلوچستان جو ہے منافع بخش صوبہ ہونا چاہیے تھا، جس کے پاس اتنی بڑی زمین ہے، دولت ہے، اس کے پاس زمین ہے، اس کے پاس تیل ہے، گیس ہے، پی پی ایل ہے، ریکودک ہے، سندک ہے۔ تو بلوچستان کا جو ہے وہ ایک منافع بخش صوبہ ہونا چاہیے تھا 1 کروڑ 22 لاکھ کی آبادی کے ساتھ۔ کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ اس صوبائی حکومت یا سابقہ صوبائی حکومتوں نے کبھی بھی ایک بہت ہی مالیاتی پالیسی اور حکمت عملی نہیں بنائی۔ مثال کے طور پر سر 1974 میں بلوچستان صرف 8 کروڑ روپے کا مقروض تھا، خسارے کا تھا۔ بڑھتے آج بلوچستان 101 ارب روپے کا خسارے کا شکار ہو گیا ہے۔ سی پیک،
PPL, अच्छा 18वीं तरमीम के बाद कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है जनाबे वाला यहां पर आर्टिकल 173 के सब सेक्शन 3 के तहत PPL से अगर ये हुकूमत या साबिका हुकूमतें, ये हुकूमत भी नाइली से काम ले रही है, अगर PPL के साथ हम अपना SROs की बजाय हम जो हमारा एग्रीमेंट है PPL के साथ साइन करें तो जनाबे वाला हमें 22 से 30 अरब रुपए जो है, 25 से 30 अरब रुपए जो है बराह रास्त हमारा शेयर का मिलेगा। 50% PPL का होगा, 50% हमारा होगा। लेकिन ब्यूरोक्रेटिक और नॉन टेक्निकल लोगों की वजह से जो बलूचिस्तान के मामलात को नहीं समझते, आपका 30 से 40 अरब रुपए का नुकसान, वो 30 से 40 अरब रुपए का नुकसान आपका पड़ गया फेडरल गवर्नमेंट का। अब इस पे मैं दूसरा आता हूं, मेरे दोस्त ने कहा कि जी हम मालियाती तौर पर तालीम में इतना पैसा दे रहे हैं। मैं ये नहीं पूछ रहा हूं आप क्या दे रहे हैं, आपके पास जो कुछ है जिधर भी दें, आप कुएं में भी गिरा, में इससे गरज नहीं, आप वैसे ही खसारे का बजट है। इसका मतलब ये आप जहां पे भी दे रहे हैं आप नुकसान में दे रहे हैं, आप स्कूल में दे रहे हैं, बिजली में दे रहे हैं, तालीम में दे रहे हैं। मैं जो ये बात कर रहा हूं कि ये मेरा वतन है, ये मेरा सूबा है, ये मेरी इज्जत है। जब मैं बाहर जाता हूं कहते हैं बलूचिस्तान नालायकों का सूबा है, 110 अरब का खसारा, 130 अरब का खसारा, 140 अरब का खसारा। क्या है जनाबे वाला? एक्सपेंडिचर्स हैं। अब मैं आपको बताऊं 70 अरब रुपए आप अमन अमान पे खर्च करते हैं। थोड़ी देर के बाद हम चमन के मौजू पर बहस करने आएंगे। अमन अमान की मद में आप मुसलसल नाकाम है। आपने कम्युनिटी पुलिसिंग की बजाय सब कुछ जो है 70 से 80 अरब रुपए आप सिक्योरिटी फोर्सेस को देते हैं। आप जो है जनाबे वाला स्पेशली हमारा जो बहुत बड़ा एक पैसा है बलूचिस्तान का, वो आप दे रहे हैं इसमें सिक्योरिटी की मद में। आप उसमें कट लगाएं, आप बैठें किसी के साथ गुफ्तगू शुनीद करें। दूसरी बात यह कि सालाना 2 से 3 अरब रुपए की गाड़ियां खरीदी जाती हैं। सबसे बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट सेक्रेटरीज का, सेक्रेटरीट का या बलूचिस्तान के अपने इंतजामी मामलात का सबसे बड़ा कॉस्ट है। आप उसमें बैठकर भी कट लगा सकते हैं और ये यहां पर डिस्कशन करें। दूसरी बात यह है जो ISA है, इंटरनल सिक्योरिटी अलाउंस जो आप देते हैं, 2 से 3 अरब रुपए, 4 अरब रुपए आप फेडरल गवर्नमेंट को, वफाकी जो सिक्योरिटी इदारे हैं उनको 3 से 4 अरब रुपए, ये गरीब सूबा जिसके 18 लाख बच्चे तालीम से महरूम हैं, जिसके 12,000 अफराद कैंसर का शिकार हैं, जिसके 12,000 अफराद सड़कों पर मरते हैं, यह सूबा सालाना 4 से 5 अरब रुपए सिक्योरिटी अलाउंस के तौर पर सिक्योरिटी फोर्सेस को दे देता है। जरूरी है, लेकिन ये एक्सपेंडिचर अगर फाटा में, स्पेशली फाटा में फेडरल गवर्नमेंट दे देती है या वहां पर 1% NFC में के लिए वो कहते हैं उनके लिए मुख्तस किया पिछले बजट में, ये फार्मूला बलूचिस्तान के लिए क्यों नहीं अप्लाई किया जाता है? तीसरी बात ये सर, मैं मेरे वजीर साहब को ये बताना चाहिए था। माली खसारा, मैंने यहां पर जो सवाल किया था वो ये है कि माली खसारा गरज से कोई जामे पॉलिसी और संजीदा हिकमत अमली क्या है? आप मुझे बताएं बलूचिस्तान में आपकी हुकूमत में 3 साल में ये वो तराशा अखबार का जिसमें आप मुझे कहते हैं कि बलूचिस्तान को हुकूमत को 101 अरब खसारे का सामना पड़ा है। चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान मतर नियाज राना की जेर सतारत जुमेरात को सेक्रेटरीज कमेटी का इजलास हुआ जिसमें सूबे की माली पोजीशन, रूल्स ऑफ बिजनेस, फलाना फलाना अगर कहते हैं ये जरूर साहब को मेहरबानी करके कोई दे दे, ये इसको दे दें ताकि। अच्छा जनाब चेयरमैन साहब, आप मुझे बताएं कि इस हुकूमत ने एक दिन कोई संजीदा डिस्कशन इस फ्लोर पे ले आए कि बलूचिस्तान में हमारे साथ ये इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है, आए हम और अपोजिशन मिलकर बलूचिस्तान में बहुत बड़ी सरमायाकारी को फरोग दें ताकि उससे हमें रेवेन्यू जनरेशन हो, टैक्सेशन में इजाफा हो, बलूचिस्तान में एम्प्लॉयमेंट में इजाफा हो और बलूचिस्तान का जो माली बोरान है, माली खसारा है, वो पूरा हो सके। आपने जो कभी प्रो ग्रोथ PSDP बनाई है, माली खसारे कैसे कम होंगे? जो सूबा 50 साल से 60 साल से सिर्फ सीमेंट, सरिये और ईंटों का कारोबार करता हो, ऐसा सूबा जिंदगी भर खसारे में जाएगा। यह कारोबार कोई भी करे, एक ऐसा सूबा जो सारी जिंदगी हर PSDP आती है, मां सिवाय एक दिन प्रो ग्रोथ डेवलपमेंट स्ट्रेटजी आपकी जितनी भी बनती है आप बैठ के उसको नहीं करते। सारा कारोबारी मुझे कहता है, अभी कहता है कि फाइनेंस में ठेकेदारों का मलका नहीं है। भाई पूरा सूबा आपके ठेकेदारों के कंट्रोल में है। यह कैसी बात करते हैं कि सारे सूबे की PSDP कंस्ट्रक्शन जरूरी है हमारे लिए, हम सब इस कारोबार से मुंसलिक हैं, लेकिन जब बलूचिस्तान के पूरे ओवरऑल डेवलपमेंट की बात आती है, बलूचिस्तान की तरक्की की बात आती है, खुशहाली की बात होती है, आप तालीम आपका जो है तरजीह नहीं है बलूचिस्तान के PSDP में, सेहत आपकी तरजीह नहीं है, ह्यूमन रिसोर्स, इंसानी वसाइल, हुनरमंदी और स्किल डेवलपमेंट आपकी तरजीह नहीं है, बलूचिस्तान की शान और शौकत आपकी तरजीह नहीं है। सारे प्रोजेक्ट्स PSDP के यहां निकाल के दिखाएं, उसमें मैं आपको सिर्फ मां सिवाय सीमेंट, सरिया, कचरे, ईंटों के और कुछ नहीं है उसमें। तो कैसे आपका खसारा कम होगा? आपका खसारा मुसलसल बढ़ता आएगा। जनाबे वाला, इस सूबे का जो माली खसारा है वो कम हो सकता है, आपका नेचुरल रिसोर्स और लैंड का रेवेन्यू है। पूरी दुनिया में जमीन दुनिया की सबसे महंगी तरीन चीज है, जिसमें अभी सरिया वाले, आप हमारी हजारों एकड़ जमीनें
चाहे वो कोस्ट पे हो, चाहे हमारे कुदरती वसाइल हो, बगैर पूछे हुए 2 रुपए दाम, 6 रुपए दाम, 20 रुपए दाम, 100 रुपए दाम पे एकड़ों के एकड़ जो हैं वफाकी इदारों को आपने दे दिए हैं। ये हमारी दौलत है, ये आपको खरबों ट्रिलियंस ऑफ रुपीस जो है आपको ये दे सकता था। आप इसके अंदर ऊपर बैठे, इस बलूचिस्तान असेंबली में हम मुत्तफका तौर पर आपके साथ शामिल है कि बलूचिस्तान की ये जमीन ये वापस वागुजार की जाए और ली जाए, ताकि बलूचिस्तान में जो है अब बलूचिस्तान के ये जो जमीन है, इसके कुदरती वसाइल है, दौलत है, इसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल की जाए। सीपैक का रेवेन्यू है, आपको सीपैक से प्रोजेक्ट नहीं मिले, उसकी बिजली से जो रेवेन्यू हो रहा है आप उस पे आके बैठ करें एनएफसी में। दूसरी बात यह कि जो एनएफसी का आपका शेयर है, पिछली दफा हम यहां बैठे थे, हमने आपको बहुत मुदल्लिल आपको तजावीज दी, 10 एडिशनल क्राइटेरियाज हमने बताए जो बहुत ही स्ट्रांग है। स्पेन में जाएं, साउथ अफ्रीका में जाएं, ऑस्ट्रेलिया में जाएं, कनाडा में जाएं, इंडिया में जाएं, ये सारे क्राइटेरियाज पर जो है वो अपने सूबों को, अपनी फेडरेटिंग यूनिट्स को जो है वो सपोर्ट करते हैं, जिसमें एरिया है, समंदर है, सरहदें हैं, इकोनॉमिक पोटेंशियल है। ये सारी चीजें हमने यहां पर 2-3 घंटे एनएफसी के हवाले से बहस की। आप एक दिन ये डिस्कशन दोबारा ले आए, हम आपको दोबारा इनपुट दे देंगे। आप जब एनएफसी में जाएंगे, आप अपने इस माली खसारे को रोना धोना है। आपकी कल हुकूमत नहीं होगी, किसी और की हुकूमत होगी, मलिक सिकंदर साहब की हुकूमत होगी, यहां से किसी और दोस्त की, सरदार की हुकूमत होगी। लेकिन देखें, ये जो सूबा जिस पे इतना बड़ा कर्जे का बोझ है, जो कर्ज के बोझ के तले दबा हुआ है, जहां आप तालीम के शोबे में खर्च नहीं कर पा रहे हैं, जहां आप सेहत के शोबे में खर्च नहीं कर पा रहे हैं, जहां पर आप अपनी सरकारी और इंतजामी अयाशियों को कम करने पर फोकस नहीं कर रहे हैं, जब आप बलूचिस्तान की जमीन, तेल, दौलत और गैस पर जो है फोकस नहीं कर रहे हैं, एक दिन कोई एक लेटर मुझे बताएं कि आपने पीपीएल, फेडरल गवर्नमेंट को लिखा हो कि पीपीएल का जो साथ जो हमारी अरेंजमेंट है वो एसआरओस की बजाय परमानेंटली हम आए, हमारे पास एग्रीमेंट सेट करें। किसी दिन मुझे आप दिखाएं। ये सूबा, ये इसको इसीलिए हमें लोगों ने मुंतखब किया है कि हम उनके मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करें, हम उनको इस कर्जों के बोझ से निकालें, हम उनको तरक्की दें। और आप जनाब वाला मजूर साहब मेरे छोटे भाइयों की तरह, मैं आपको मोरद इल्जाम नहीं ठहराता, लेकिन एक बात आपको तस्लीम करनी होगी, 3 साल से आप डायरेक्शन लेस गवर्नमेंट है। डायरेक्शन लेस यानी इसकी कोई मंजर मकसूद नहीं, इसका कोई मतमे नजर नहीं, इसका कोई फोकस नहीं। ये पैसे किसी और को दे दें, खुदा की कसम सड़क से किसी आम से आदमी को बिठा के वजीर आला बनाएं, ये ब्यूरोक्रेसी, ये सेक्रेटरीट, ये फाइलें हमसे अच्छी हुकूमत चला लेगा। विजन, शुक्रिया, इन्वेंशन, जनाब चेयरमैन साहब, इन्वेंशन, तदब्बर, वो चीज मुझे दिखाएं। एक दिन आपने यहां पर ये डिस्कशन के लिए लाए हैं कि बलूचिस्तान को खसारे से कैसे निकालें, बलूचिस्तान में तालीम तरबियत कैसे निकालें, फिर हम इसको मानते हैं कि आपके पास इन्वेंशन है, आपके पास जो है इनोवेशन है, आपके पास जिद्दत है, आपके पास सलाहियत है, आपके पास एक बहुत बड़ा आपका मतमे नजर है बलूचिस्तान को आगे ले जाने का। मुझे अफसोस ये होता है, बलूचिस्तान में शायद हम इन चीजें फील नहीं करते हैं, लेकिन अब बलूचिस्तान से बाहर जाते हैं जो भी पढ़े लिखे लोग हैं, जब उनके सामने बैठते हैं हमारी आंखें भी शर्म से झुक जाती हैं। लोग ये नहीं जानते हैं अपोजिशन में, लोग ये समझते हैं हम इक्वली रिप्रेजेंटेटिव्स हैं कि बलूचिस्तान की सूबा असेंबली में ये डिस्कशन होना चाहिए था। हम रोजाना लाशों की, जिंदा लाशों की, कफन पोश अपने नौजवानों की, CNW की, वहां पर ग्लोबल पार्टनरशिप के एजुकेशन की, सरियाब की कटिंग की, नालियों की, ट्रांसफार्मर्स की, बिजली बंद होने की जो है यहां पर सोच शिकायतें करते हैं, इसलिए कि यह गरीब सूबा रोज बरोज बकरूज होता जा रहा है। आपके पास अच्छी हुक्मरानी और अच्छे पैसे हो, ये 361 मुलाजमीन को, बेचारों को आपने सड़कों पर कफन पोश खड़ा किया हुआ है। मैं आपको 3061 मुलाजमीन एक दिन में भर्ती करके दिखा सकता हूं। इस सूबे में इतनी कपत है, इस सूबे में इतनी दौलत है, लेकिन ज़हूर साहब, लेट्स प्रॉपरली यूज दिस फोरम, इस ऐवान को, इसके बासलाहियत मेंबरान की सलाहियत को इस्तेमाल करें। अगर